Hello, good evening, everyone. So we are starting with the third lesson of the same chapter. Okay. Hey, just give me 1 minute, okay? Yes. So third lesson of the same chapter. Today we're gonna end the chapter, okay? And at the end of this lesson, I have a surprise for all of you. Okay? So I'm opening the chats here. Quickly, quickly sum up what all we have done till now. Two things is left. Factors responsible for British success. Still factors responsible for British success. I would want you all to just give me a review ki yes ma'am, we have studied. Now you can move ahead. Till here. Why is it not writing? Yep. Till here, I want everyone to just quickly give me a recap. Yes, please start. I am reading the chats. Start. European exploration and arrival in India. Why did it happen? Yes. Feel only Ria is very attentive in the class. I have got her answer and I will read out the perfect answer for you, okay? First, second topic, third, till eighth we have done, ninth we have to start with. Okay, I'll read the answer later on. Let's start with, okay. So, till now we have understood that what all happened, and what happened exactly that British could come to India and conquer us. We have understood, and what was the basic reason for them to come to India. So, their reason to come to India, first, why did they get to know about India? Because of the Indian spices we have. Second, their business strategy was the trading of these spices. But when they came to India, they thought of, yes, they thought that they will even flourish Christianity in India. That is what they have thought. Okay. And then we have understood that there were a lot of companies which came, but the European could stay, the English could stay, and rest Portuguese had come. They could not put their front foot. Then we had Dutch, then we had French. They could not put their front foot, but what exactly happened that they could stay, and what was the drawback that we had that favored the other person to stay and conquer us. Now after all that we have studied, we will see what was the reason for the failures of Indian powers. Political dignity, no sense of rational unity. There was no rational unity. Racism में unity नहीं थी. ठीक है, there was no unity between the castes and the leaders. Okay, that was अब देखिए इंडियन फेलियर ऑफ इंडियन पावर्स में भी उनके हम सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. तो पहला
टॉपिक था पॉलिटिकल डिसयूनिटी। तो कोई भी रैशनल यूनिटी नहीं थी, फ्रीक्वेंटली बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे किंगडम्स वाइज किंगडम्स, जिसकी वजह से अगर इस किंगडम में सपोज किसी ने कॉन्कर किया तो ये किंगडम इसका साथ देता था, rather than making this kingdom, I'm just giving an example, okay, rather than making this kingdom more powerful, they could even see कि अच्छा ये अब वीक हो रहे हैं, अब हम भी कॉन्कर कर सकते हैं। that was the reason that was one of the reason, ठीक है, ओके। लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेजिस्टेंस, कोई भी कोऑर्डिनेशन अमंग द किंगडम्स नहीं थे, ठीक है। सो दिस वाज फर्स्ट द रीजन पॉलिटिकल डिसयूनिटी। सेकंड मिलिट्री वीकनेस में क्या हुआ, आउटडेटेड वेपन एंड वेयरफेयर, लैक ऑफ डिसिप्लिन स्टैंडिंग आर्मीज, in inferior arbitrary compared to the British, आउटडेटेड वेपन्स थे। मैंने आपको बताया कि किंग्स जो थे वो मिलिट्री में पैसा लगाते ही नहीं थे, कोई डिसिप्लिन था ही नहीं मिलिट्री में, कोई उनके पास नए वेपन्स नहीं होते थे, जिसकी वजह से जो मिलिट्री थी वो बहुत बैकवर्ड पीछे की तरफ हो गई थी। इंफीरियर आर्बिटरी कंपेयर टू द ब्रिटिश। अब हुआ क्या, ब्रिटिश के पास सब कुछ था, ट्रेन्ड आर्मी थी, ट्रेन्ड आर्मी थी, बट जो हमारी इंडियन की आर्मी थी वो बहुत ट्रेन नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस। मुगल के बाद कोई प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन आया ही नहीं, मराठास भी आए बट फिर भी वो उतना, मैंने आपको बताया आफ्टर आफ्टर मुगल मराठास भी आए बट उतना उनके में भी पावर नहीं था, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन उतना संभाल नहीं पाए। करप्शन बहुत था, किंगडम्स में ही करप्शन था। हमने अगर कोई जगह पे किसी सूबेदार या मतलब कोई भी एक रीजन दिया है किसी भी पावर को, तो वहां पे उसने अपना पावर शुरू कर दिया, उसने उसे अपना ही रीजन बना दिया, रादर देन उस किंगडम के अंडर कंट्रोल होने में उसने उसको खुद का किंगडम बना लिया और उसको इंडिपेंडेंटली रूल करने लग गया। इसकी वजह से भी इनसफिशिएंट मतलब करप्शन होने लगा। पुअर रेवेन्यू मैनेजमेंट, जस्ट बिकॉज कोई हायरार्की मेंटेन ही नहीं होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, इसकी वजह से रेवेन्यू का मैनेजमेंट बहुत बेकार होता, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है इकोनॉमिक लिमिटेशन, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। फाइनेंशियल लिमिटेशन क्या थी, कोई भी बहुत इंस्टेबिलिटी थी और रिसोर्सेज बहुत कम थे। जैसे मैंने आपको बताया कि सेट था कि एक पोटर का बच्चा पोट्री ही करेगा, राजा का बच्चा राजा ही बनेगा, भले वो उस लायक हो या ना हो। इनएडिक्वेट फंड्स थे, डिपेंडेंट था रिवेन्यू सिस्टम पे, ट्रेडिशनल रिवेन्यू सिस्टम पे डिपेंडेंस था। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर ये सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है तो हम क्यों इसको चेंज ना करें, इसमें नई चीजें क्यों ना लाएं, तो ये भी नहीं कर पाया। फिर डिप्लोमेटिक फेलियर्स क्या थे, फेलियर टू बिल्ड अ लास्टिंग अलायंस। इन लोगों में क्या हुआ कि ये लोग अलायंस भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। मेनी रूलर्स सपोर्टेड द ब्रिटिश अगेंस्ट द राइवल। जैसे मैंने आपको बताया कि समझिए इस किंगडम में ब्रिटिश अटैक कर रहा है तो आसपास के रूलर्स जो है वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि ये बाहर वाले इनको सपोर्ट नहीं करना है, लेकिन वो ब्रिटिश को ही सपोर्ट करते थे। आपस में यूनिटी नहीं थी, जो कि हमने पहले ही देख लिया कि रैशनल यूनिटी नहीं थी। अच्छा, अब आप देखिए अगर आप एक वर्ड पकड़ लेना तो उससे आप पूरा सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। रैशनल यूनिटी में यही हो गया ना कि वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो उसको डिप्लोमेटिक पावर में लाके लिख दीजिए, ठीक है। ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड रीजनल राइवलरीज, ठीक है। अब ब्रिटिश को क्या हो गया ना, उन्हें समझ में आ गया कि अगर इस किंगडम और इस किंगडम के बीच में लड़ाई है तो क्यों ना फिर मैं इस किंगडम को, सॉरी, हाँ, क्यों ना फिर मैं इसको और इस लाइबिलिटी का फायदा उठाऊं। तो वो किसी एक के सगे हो जाते थे, दूसरों में उसी में अटैक करवा देते थे। लीडरशिप क्राइसिस, कोई भी विजन, एक प्रॉपर विजन का लीडर बैठता ही नहीं था थ्रोन पे, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी ही नहीं होती थी, मिलिट्रीज में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाती थी क्योंकि ये लोग मिलिट्री पैसा ही नहीं लगाते थे, कोई ट्रेन एग्जीक्यूटिव था ही नहीं, ठीक है। और फ्रीक्वेंशियल मतलब डिस्प्यूट, कोई भी राजा का कोई भी आया
वो भी उसका डिस्प्यूट्स इतने रहते थे क्योंकि उसको पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकली उस किंगडम को संभालना आता ही नहीं था। टेक्नोलॉजी एंड नेवल डिसएडवांटेजेस, वीक नेवल प्रेजेंस, लिमिटेड एक्सेस ऑफ मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया, इनएबिलिटी टू काउंटर ब्रिटिश मैरिटाइम डोमिनेंस। इनकी मतलब इतनी ट्रेन ब्रिटिश ब्रिटिश की आर्मी थी, उनको इतना ज्यादा प्रॉपर वो दिया गया था कि हमारे इंडियन रूलर्स की जो आर्मी थी भले वो कितनी भी स्ट्रांग हो, वो उसको कॉन्कर कर ही नहीं पाती थी, वो उसको फेस कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि उसको नया रीजन पता ही नहीं था, उसको नई मिलिट्री पता ही नहीं थी। ब्रिटिश की स्ट्रेंथ क्या थी? देखिए, यूनिफाइड कमांड, मॉडर्न आर्मी, स्ट्रॉन्ग नेवी, स्टेबल रेवेन्यू था उनके पास, और इफेक्टिव डिप्लोमेसी। सोचिए, एक यूरोप में बैठा लीडर जहां इंडिया के में भेजे हुए लोगों को गवर्न कर लेता था, और वो उसकी सुनते थे बिना किसी मतलब मुंह बनाए, जिसे कहते हैं बिना किसी इफ और बट के। तो आप समझिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। ठीक है। इंडियन वीकनेस क्या थी? पॉलिटिकल डिग्निटी थी, आउटडेटेड मिलिट्री थी, वीक नेवल पावर्स थे, एंड फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे ही, इंटरनल राइवलरीज जो होती थी, पॉलिटिकल डिसयूनिटी। ये अब आप ये देखिए, अगर आप अपने नोट्स में सिर्फ यही चार्ट बना लें, बाकी आप खुद लिख सकते हैं, पूरी कहानी पूरी गाथा लिखने की जरूरत नहीं है। क्विक रिविजन के लिए यहां से पढ़ लेते हैं। The British succeeded not only because of their strength, but also because Indian power remained politically divided, militarily outdated, economically weak, and failed to unite against a common enemy. इंडिया में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि वो ब्रिटिश को एनिमी समझ ही नहीं पाए। उन्हें ये लगा ही नहीं कि वो लोग हमारे एनिमी हैं। उन्होंने करा क्या कि उन्होंने आपस के डिस्प्यूट में ही ब्रिटिश को जीतने का पावर दे दिया। वो ये समझ ही नहीं पाए कि नहीं, अगर मेरी इससे लड़ाई है तो चल घर घर में ही रखते हैं, लेकिन अभी हमारे सामने कॉमन एनिमी है, उसको देखते हैं। वो उसको रख ही नहीं पाए। ठीक है, समझ में आया? मैम सरप्राइज बता दो, अभी सब बता दूंगी तो क्लास के एंड तक तो तुम रुकोगे ही नहीं। और आज की क्लास तो वैसे भी छोटी है, 2 ही स्लाइड बचे हैं मेरे पास पढ़ाने के लिए। आज ना मैं थोड़े से क्वेश्चंस भी ले लूंगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा है, उसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी क्लास में इतना प्रेशर नहीं है कि मुझे टॉपिक कवर करना है, तो आई कैन टेक योर क्वेश्चंस। मैम, मैं पढ़ा इस टॉपिक को खत्म करके फिर आपके क्वेश्चंस लूं, लास्ट स्लाइड है, फिर मैं क्वेश्चंस लूं आपके। हाँ जी, बताइए। है ना? गुड आइडिया। आप मुझे अपनी क्वेरीज ईमेल कर सकते हैं, तब सर को ईमेल कर दीजिए। ओह, दिस वाज द लास्ट स्लाइड। और नहीं, इम्पैक्ट सर, तब सर को ईमेल कर लीजिए आप, कोई बात नहीं, वो भी आपको गाइड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वो ये सब्जेक्ट ले नहीं रहे तो उनका कमांड नहीं है सब्जेक्ट पर, वो भी आपको गाइड कर देंगे। कोई मुझे ये बताएगा कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि मैं लिखूं और वो उसी स्लाइड पे रह जाए, तो ये मुझे इरेज नहीं करना पड़े दूसरे स्लाइड पे आके। मुझे बड़ी आलस आती है, आई एम वेरी लेजी। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। शुरू करें। कलर चेंज करूं, व्हाइट कर लेते हैं। इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है जब ब्रिटिश हमारे हम पे आके राज करने लगे? पॉलिटिकल उन्होंने करा क्या? इंडियन पॉलिटिकल को इंडिपेंडेंट, मतलब जितनी भी इंडियन पॉलिटिकल एक पावर था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, कोई इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिकल पावर की उन्होंने रखी ही नहीं। उन्होंने ये बोला कि हम जैसा कहेंगे तुम वैसा करो। ठीक है। उन्होंने करा क्या? बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? अपने कॉलोनियल रूल को वो बनाने लगता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने करा क्या? जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू लेते हैं।
इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ? कंट्रोल ओवर इंडियन रेवेन्यू एंड रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हुआ कि जितने भी रेवेन्यू, जितने भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे, वो उसको कलेक्ट करने लग गए। ठीक है, वो हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने लग गए, वो हमारी वेल्थ को अपने तरफ ट्रेड करने लग गए। ठीक है, उन्होंने करा क्या? हमारे ही रॉ मटेरियल को चीप में खरीद के वहां पे एक्सपेंसिवली बेचने लग गए। मतलब जितना रेवेन्यू, जितना एक गुड की प्राइस होनी चाहिए थी, रॉ मटेरियल की प्राइस होनी चाहिए थी, उतना मिलता नहीं था हमारे इंडियन फार्मर्स को। ठीक है। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, उन्होंने मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जुडिशियल एंड रेवेन्यू इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने इंस्टीट्यूशन को, उन्होंने एक्चुअली करा क्या, जितना भी कल्चर उनके हिसाब से वहां पे था उसको यहाँ पे बनाने लग गए। एक्सपेंशन ऑफ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस इंडिया। मिलिट्री इम्पैक्ट, ब्रिटिश आर्मी became द डोमिनेंट मिलिट्री फोर्स, ब्रिटिश आर्मी जो है वो डोमिनेंट मिलिट्री फोर्स बन गई। इंडियन किंगडम्स ग्रेजुअली लॉस्ट मिलिट्री ऑटोनॉमी। ठीक है, फाउंडेशंस फॉर द फर्दर फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिटिश ने इंडियन की, मतलब भले हमारी इंडिया, सॉरी, हमारी इंडियन मिलिट्री उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उसमें भी डोमिनेंट हो गई यूरोपियन, ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री सर्विसेज। और इंडियन किंगडम्स को क्या किया, उनकी जितनी भी मिलिट्री पावर्स थी उसको उन्होंने खत्म ही कर दिया। ठीक है, और उन्होंने अपनी टेरिटरी को, ये चीज मतलब मिलिट्री को खत्म करके अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर ली। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर वो करके मुझे ग्रेटर नोएडा बोल रहा है, ओके। ग्रेटर इंटरेक्शन विद द, उन्होंने क्या करा कि अब वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा मतलब कोरिलेट करने की कोशिश करी, उसके हिसाब से वो ज्यादा काम करने लगे। ओके, बिगनिंग ऑफ न्यू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस। देखो, कुछ सही भी करा उन्होंने, कुछ वेस्टर्न चीजें लाए तो हमारे में जितने भी सुपरस्टिशन वाली चीजें थी उसको उन्होंने क्वेश्चन करा, लोगों को ये समझाया कि ये क्वेश्चनेबल चीजें हैं। ठीक है, उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम को लाया, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस को लाया। सीड्स ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफर्स, उन्होंने क्या करा, एक रिलीजियस पावर, मतलब एक कहते हैं ना कि जो इम्पैक्ट बना हुआ था रिलीजन, एक कास्ट सिस्टम को लेकर, उसको लोगों को क्वेश्चन करना सिखाया। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था? ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रेडिंग कंपनी टू द कॉलोनियल एम्पायर। वो हुआ क्या कि वो आए तो थी ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दी। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ नियरली 2 कंट्रीज ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, उन्होंने करा क्या कि 2 कंट्री, एक तो खुद की कंट्री तो थी, एक हमारी कंट्री को भी ब्रिटिश रूल, मतलब हमारे उसको उसको मतलब हमारी कंट्री को भी उन्होंने अपने रूल के अंडर ही कर लिया, मतलब ब्रिटिश ही बना लिया। चेंज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल फोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने करा क्या? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशल, उन्होंने हर चीज को अपने तरीके से मतलब डिफॉर्म करना, फॉर्म करना चाहा, डिफॉर्म करके फॉर्म करना चाहा। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट था हमारे ऊपर। पहला पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये था कि उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस को, मतलब इंडियन रूलर्स के इंडिपेंडेंस को छीन लिया। ठीक है, उन्होंने उसे अपनी कॉलोनियल रूल में ले लिया और उन्होंने ये बोला कि जो हम कहेंगे वही करना है। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ? जितने भी रेवेन्यू थे वो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा रहे थे, तो वेल्थ हमारी जो है वो ड्रेन होने लग गई। रॉ मटेरियल का मार्केट में प्रॉपर प्राइस नहीं मिलने लगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि जितने भी मॉडर्न, मतलब हमारे उसमें इंडियन सिस्टम को हटा के मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आने लग गया। ठीक है, उन्होंने नया जुडिशियल और नया रेवेन्यू फॉर्म को इंट्रोड्यूस करा। मिलिट्री इम्पैक्ट उन्होंने करा क्या कि उन्होंने इंडियन मिलिट्री को हटा के अपनी ब्रिटिश मिलिट्री को आगे कर दिया, जिसकी वजह से काफी रीजन, काफी उसमें उन्होंने उसको अपने अंडर कर लिया, काफी किंगडम्स को उन्होंने अपने अंडर कर लिया, तो उनका टेरिटरी एक्सपेंशन हो गया। सोशल कल्चर में क्या किया उन्होंने? अपने एजुकेशन, जो उनकी साइड की एजुकेशन थी, उनके टाइप ऑफ एजुकेशन थी, उसको एक्सपैंड किया।
It even made the people of India question what they were believing. जो उनके शायद सुपरस्टिशन से उसको भी, सॉरी, सुपरस्टिशन से उसको भी क्वेश्चन करने के लिए उनको मौका दिया। काफी चीजें उन्होंने देखो सही भी करी, कि कुछ चीजें हम भी अंधविश्वास में कर रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या थी कि उसका कोई उस एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट में उन्होंने नहीं करा। ठीक है, इम्पैक्ट का फ्लो आपके पास ये रहा, यहाँ से आप इसको लिख लेंगे आप अपने नोट्स में। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनियल रूल, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब इसमें रिमेंबर क्या करना है? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ दीवान, दीज थ्री इवेंट्स टुगेदर लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। टाइमलाइन याद करनी है इनकी। ओके, और इनका वो याद करना है। क्विक रिवीजन में आपके स्लाइड्स पे ऑलमोस्ट हर चीज हम लोगों ने बनवा दी है। ठीक है, तो आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर, यहाँ पे एंड ऑफ द चैप्टर। एनी क्वेश्चंस इज वेलकम। यस, मैंने एक ओरिएंटेशन सेशन में बता रखा है कि नोट्स कैसे बनाना है, प्लीज उसको देख लीजिए। सरप्राइज टाइम। Should I reveal the surprise? Next session is for, so your wait is over. Okay? Understood? समझ आया? तो आप लोगों का वेट जो है वो ओवर हो चुका है। We will have the answer writing now. Okay? In the next class, next session will be of the answer writing. Yes. नोट्स पर आप मुझे अपना नोट्स एक बार व्हाट्सएप कर सकते हो, आई, सॉरी, व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो, और आप टोल फ्री नंबर पे उसे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आई विल चेक, आई विल गेट इट। एनी अदर क्वेश्चन? देखिए, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम मुझसे 12 घंटे पढ़ने दे। देखो बेटा, अगर आप फर्स्ट डे पे ही बैठोगे 12 घंटे पढ़ने, तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। 3 घंटे से शुरू करो, 2 घंटे से शुरू करो, 3 घंटे से शुरू करो, ग्रेजुअली इंक्रीज करो। अचानक से कोशिश करोगे तो नहीं होगा। ठीक है? यस, एनीथिंग?
कल वाले सेशन में ही आंसर राइटिंग देख लेंगे। सारे आंसर्स मैं कल ही चेक कर लूंगी, ठीक है। Anything else that you guys want me to consider, please do let me know. लो बना दिया स्माइली। ओके। सैटरडे संडे, संडे आई गेस सर नहीं लेते हैं ना क्लास। मेरी क्लास के बाद तो अक्सर की क्लास होती है ना, स्टूडेंट्स, पेड स्टूडेंट्स, सर लेते हैं क्लास। बस, बस करें हम। क्या क्विक, ये भी बता दे। एक सेकंड मैं सिर्फ बता ही देती हूँ। इसे मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि कैसे करना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। अब आई एम नॉट रिमूविंग दिस। जैसे आपने पहले, पहले इस टॉपिक का इस चैप्टर का पहला टॉपिक था यूरोपियन एक्सप्लोटेशन, ओ सॉरी, एक्सप्लोरेशन एंड अराइवल इन इंडिया। तो पहले उनका मोटिव क्या था, ठीक है, उन्होंने इसे नेविगेट कैसे करा, ये सब लिखना। फिर इसके बाद कई लोगों ने कोशिश करी आने की, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, ठीक है। तो सबसे पहले पोर्टुगीज आ गए, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब उन वो आ गए। क्यों, और क्यों उन्होंने लैंड वाला रास्ता नहीं लिया, क्यों उन्होंने सी वाला रास्ता लिया, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन राइट डाउन। नेक्स्ट, पोर्टुगीज एंड डच, इनके बारे में आपने थोड़ा बहुत लिख दिया, ठीक है, कि पोर्टुगीज में सबसे पहले वास्को द गामा आए थे, कब आए थे, उनका क्या कंट्रोल था, ठीक है। और एक्स वाई जेड, इसके बाद डच आए इंडिया में, उनका क्या कंट्रोल था। ये तीन इंपॉर्टेंट सेंटर्स तो मैंने याद करवाए थे आपको क्लास में। फिर इंग्लिश और फ्रेंच आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, फ्रेंच ने कैसे करा, कब स्टैब्लिश्ड हुई, इनकी फर्स्ट स्टैब्लिशमेंट हुई कहाँ थी, ठीक है। फिर दूसरा था उनके वॉर्स, कार्नेटिक वॉर्स, ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर फ्रेंच। फिर पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया उस समय की क्या थी वो। इसके बाद ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, ये सब आपने लिख दिया। आपको ये देखिए,
ये देखिए यहाँ पे ना, आपको हमने पूरी स्लाइड्स में हर छोटी चीज इन शॉर्ट लिखी हुई है। तो अगर आपको जैसे सिर्फ आपको अपने उसमें लिखना है तो देखिए आपको इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लेकिन आप क्विकली रिवीजन करने के लिए इन इनके पीडीएफ्स को वो गो थ्रू कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके। एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स, इसमें ये सब है, ये सब नोट्स में लिखो ना। बस इतना ही करना है और तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया कहानी की तरह, क्या याद करोगे इसमें? डेट्स याद कर लूं, जगह याद कर लूं, इसमें क्या और क्या याद कर लूं? बस इतना करना है, फिर से खत्म करना है। सरप्राइज मैंने आप लोग को बता ही दिया कि क्या है। यस और नो? बस करते हैं। ओके। और कुछ और एनी डाउट्स? कल के सेशंस में आंसर राइटिंग करवाती हूँ, तो फिर आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस के डाउट्स कल ही लूँ। मे बी मैं करवाऊँ या सर करवाएं, देखते हैं। कोई भी हम दोनों में से सेशन ले लेगा। सर की क्लासेस तो अच्छी चल रही हैं, आप लोग पे सर की क्लासेस के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, मैंने मेरे सुनने में आया टोल फ्री नंबर से। ओके, ठीक है, बाय बाय, आई एम टेकिंग माय लीव। बाय, टेक केयर।